Hello, good evening, everybody. I hope in previous lecture you have learned so many concepts in the solution of the chapter Motion Around Earth from the new book of NCRT class ninth. Now, dear children, we are moving to the next chapter, which is effects of the force and its effect. तो उसमें जो exercise है, we are solving this question. Okay, first question of the exercise. Let's start. Using horizontal force F, a table is moved across the floor of a constant velocity. So you can see that this is a floor on which this table is moving, and on the floor, on the table a force F is acting. Due to force applied on the table, this table is moving with constant velocity. Constant, or you can say uniform or same velocity. How much is the frictional force exerted on the floor of the table? So dear children, we already know friction force always acts in opposite to the direction of motion. Let this is the direction of friction here, right? Direction of friction, which will act tangent to the surface or backward direction to the motion. I'll call this friction, let this is F, okay? And velocity is constant. If velocity is constant, obviously acceleration will be zero. Reason? In the last lecture, last chapter, you have the definition of acceleration, which is change in velocity, final velocity minus initial velocity per unit time is called acceleration. So if velocity is same, it means in place of we have u, velocity will be same, initial or final velocity. So that's why v minus v upon t, so that will come 0. It means acceleration is 0. So what is the net force acting on the table? So we will write net force acting on the table is, here we are two forcing, one force which is in forward direction, another is friction which is in reverse direction. Okay, तो force beta vector quantity होती है. If this is a vector quantity, that direction is important. तो आगे के लिए हम positive लेंगे. In backward direction we will take negative direction. Okay, तो net force कितनी हो जाएगी? F minus F. और नेट फोर्स किसके इक्वल होती है बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? मास इनटू एक्सेलरेशन. As acceleration is 0, so we'll put 0 into anything. That will be F minus F is equal to 0, or F is equal to capital F. It means whatever friction is acting on the table due to the surface, okay, that will be equivalent to the applied force acting on it. Alright girls, so this is very important for you. तो बी केयरफुल अबाउट दिस कंसेप्ट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अदरवाइज इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, you can put your comment in the comment box. Let's come to the question number 2. In question number 2, we have question number 2. For a ball moving on a smooth frictionless surface, let this is smooth frictionless surface on which a ball is moving. Let this is the ball moving on friction surface like this. Okay. Choose the appropriate action that will make the following statement physically correct. What is the first statement? Let me see this. If no net force is applied on the ball, velocity of the ball will remain the same, increase or decrease. It means velocity is same. Same means constant. तो डियर चिल्ड्रन, जस्ट नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि जब भी वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0. ओके, तो इफ एक्सेलरेशन इज 0, तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज mass into acceleration. It means mass into 0, which will come net force acting on the ball will be 0 Newton. Okay, so that's why in the statement no net force is acting, it means force is 0, then velocity remains same. So be careful about it. So that is the right option.
इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा, वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है और फोर्स भी क्या होगी, जीरो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Second part of the question. This is first part of the question. Now let's come to second part. If net force is applied on the ball in the direction of motion. ये देखिए बेटा, मान लो बॉल पहले से ही मोशन में है आगे के लिए और आपने बेटा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगा दी, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, तो वी केयरफुल अबाउट इट. If velocity increases, which is the right option? Right option is increases, not same, not decrease. I hope it's clear. Let's come to the third question. Third question will tell you two blocks P and Q, smooth horizontal surface. आप देख रहे होगे, smooth का मतलब friction is not offering here by the surface. Two forces of magnitude 4 न्यूटन and 5 न्यूटन आपको दिख रहा है, एक राइट साइड को 5 न्यूटन है, लेफ्ट साइड को 4 न्यूटन है. X in opposite direction on block P, while block Q moving with constant velocity, यानी कि जो block B Q है वो बेटा constant, यानी कि उसकी जो velocity है वो कैसी है, constant है, it's moving with constant velocity, right? तो after that we'll solve it. Let's go to the first part of the question. तो first part में हम ध्यान से देखते हैं. Let this is P block on the table. तो बेटा इसमें जो 4 न्यूटन फोर्स लग रही है वो पीछे के लिए लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. तो एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आगे के लिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और पीछे के लिए नेगेटिव. तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो नेट फोर्स होगा फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स. ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब जो एरो बेटा आगे के लिए है, तो आगे के लिए एरो है तो 5 न्यूटन, और पीछे के लिए जो एरो है दैट इज -4 न्यूटन. तो आंसर आपके पास आ गया 1 न्यूटन. इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि 1 न्यूटन है. क्लियर? लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट मींस क्यू ब्लॉक which is moving with constant velocity. तो constant velocity means acceleration is zero. If acceleration is zero, obviously force is what? Mass into acceleration. तो हम सिंपली बोल सकते हैं, तो मास तो m है, एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स इज कमिंग 0 न्यूटन. यानी कि सेकंड केस में कोई फोर्स नहीं है, फर्स्ट केस में नेट फोर्स है. तो लेट्स सी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. P एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स, सही है. Q डज नॉट एक्सपीरियंस, यस, क्योंकि इसमें जीरो फोर्स आ रही है. सेकंड, P डज नॉट, ये गलत है. थर्ड, बोथ P and Q रॉन्ग एंड रॉन्ग. ओके, तो बाय दिस वी गो टू द डेप्थ ऑफ क्वेश्चन एंड गेट द राइट आंसर. चलो आगे देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है. लेट मी रीड द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली रिटन वाइल प्रैक्टिसिंग द स्नेक बोट. ये एक बोट होती है जो केरला में होती है ना, केरला. 100 oarsmen are rowing a boat together. आउट ऑफ दिस 95 जो है बेटा, यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ है, तो वो बोट को फॉरवर्ड ले रहे हैं और बाय मिस्टेक 5 oarsmen उसको बैकवर्ड ले रहे हैं. तो एक मैं बोट बना लेता हूँ. लेट दिस इज अ बोट. ओके, अब इस बोट को जो है 5 पर्सन पीछे को ले जा रहे हैं और 95 पर्सन आगे को ले जा रहे हैं, राइट? ईच ओर्समैन अप्लाइज अ बोट फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. यानी कि हर एक जो पर्सन है वो 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो 5 पर्सन विल अप्लाई 5 into 200, that is 1000 न्यूटन force. Similarly, 95% into 200, because each applying 200 न्यूटन, तो 95 into 200 तो ये हो जाएगा 19,000 न्यूटन. बात वही आ गई. अब डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड इज पॉजिटिव, बैकवर्ड इज नेगेटिव. तो नेट फोर्स कितनी आएगी बेटा इस बोट पे? तो लेट्स सी. तो बोट पे नेट फोर्स आ रही है
ऑब्वियसली आगे को ज़्यादा फोर्स है तो मोशन उसका वहीं को होगा जहाँ नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन आगे ही होगी क्योंकि पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज 19,000 इज पॉजिटिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 1000 इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव 18,000 न्यूटन। तो पॉजिटिव का मीनिंग ये है नेट फोर्स कहाँ लगेगी? आगे। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन आगे, तो इसका मतलब मोशन भी बोर्ड का कहाँ होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियसली जहाँ को 95% फोर्स लगाएंगे एज कंपेयर टू 5%, तो बोट उधर को ही जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ वन मोर क्वेश्चन, when a net force acts on object we observe that object accelerate। ये कह रहा है जब भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये तो है ही है कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट होगी, पर एक्सेलरेट कहाँ को होगी? तो हम देखते हैं। अभी भी हमने देखा था जस्ट बिफोर कि इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स एफ दिस साइड, तो ऑब्वियसली इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी उधर को ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये रॉन्ग है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो होगा ही रॉन्ग। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो एक्सेलरेशन कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती फोर्स के। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये भी रॉन्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव करेगी और एक्सेलरेशन होगी प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स आप इंक्रीज करते हैं, फोर्स बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट में, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। इफ यू आर डिक्रीजिंग द फोर्स, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बेटा इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ तो दिया है, 4 ग्राफ्स है ऑब्जेक्ट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। आपको निकालना है नेट फोर्स कितनी होगी इन पे, या किस पे लगेगी, नहीं लगेगी, क्या होगा। तो पहला देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले वाला जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द ओरिजिन। तो स्लोप मैंने सिखाया है हर पॉइंट पे जो है कैसा रहेगा? सेम। तो व्हाट इज द स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ? तो स्लोप अंडर पोजीशन टाइम ग्राफ आपको देता है बेटा वेलोसिटी। ओके, तो स्लोप कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका भी ग्राफ बनाया जा सकता है, विच इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन तो जीरो। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो तो ऑब्वियसली फोर्स इज जीरो, सेकंड लॉ के हिसाब से। अभी हमने पढ़ा भी है, इसका मतलब इसमें जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, यानी कि नहीं लगेगी। सेकंड देखो बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर वो रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वेलोसिटी कैसे होगी? जीरो। एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? जीरो। इसका मतलब फोर्स भी कितनी होगी? जीरो। लेट्स कम टू द थर्ड वन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो इधर को पोजीशन है, ये टाइम है, ये बता रहा है कि जो पोजीशन है, लेट पोजीशन इज एक्स, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोला एक कॉनिक शेप होती है, यू लर्न हायर क्लास इन मैथमेटिक्स। तो ये देखो बेटा इस तरह से इंक्रीज हो रहा है ना, डबल इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम भी बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है। तो अगर इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, बट एक चीज़ क्लियर है, इसमें एक्सेलरेशन कैसे रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ऐसे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे होगा तो स्लोप हर जगह कांस्टेंट होगी। तो इसमें जो स्लोप होगा वीटी ग्राफ में, दिस इज वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो मिलेगी पर स्लोप तो सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हर जगह क्या होगी? सेम। अगर एक्सेलरेशन सेम है इसका मतलब फोर्स तो है ही है, फिर फोर्स इज एम ए, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है जीरो नहीं है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, इसमें फोर्स लग रही है। अब अगला देखते हैं, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। इसमें स्लोप पॉजिटिव था, इसमें स्लोप नेगेटिव है, बाकी सारा सेम है। तो वेलोसिटी कितना होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। इफ एक्सेलरेशन जीरो, व्हाट अबाउट द नेट फोर्स? दैट इज आल्सो जीरो। इट मींस ओनली इन object C force is acting, rest of the graph will indicate force is not acting। इसको अच्छे से समझना है, कोई डाउट है यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स।
लेट्स कम टू अ सेलर जंप्स आउट ऑफ द स्मॉल बोट। आप देख रहे होगे सेलर जो इधर को जंप कर रहा है ना। एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए जंप कर रहा है। विल द बोट मूव? यस। कहाँ को मूव करेगी बेटा? बैकवर्ड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन आगे को हो गया और रिएक्शन पीछे को हो गया। आप एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यस, इट विल मूव, बट इन विच डायरेक्शन? बोट कहाँ को मूव करेगी? राइट हैंड साइड, बैकवर्ड, इस साइड के लिए। ठीक है, क्यों करेगी? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज NLM 3, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नंबर 3। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 क्या बताता है कि जो भी एक्शन हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उतना ही हमको क्या मिलती है बेटा? रिएक्शन। चाहे ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है, वो सेम रिएक्शन आपको देता है, बट डायरेक्शन कैसे होती है? अपोजिट। जो नेगेटिव साइन इट विल शो द डायरेक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसीलिए बोट पीछे को मूव करेगी, राइट हैंड साइड को, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ड्यूरिंग द हाई जंप इवेंट, हाई जंप इवेंट में आपने देखा होगा जो एथलीट है उसके नीचे या तो मैट रखते हैं, ये वाली देखो, या फिर हम सैंड रखते हैं या पिट खोदते हैं क्ले की, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर हियर। तो इसको एक्सप्लेन करने का वही टेक्निक है जिस जैसे क्रिकेटर वाइल कैचिंग द बॉल हेल्ड द हैंड बैकवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन सो दैट फोर्स ऑफ इम्पैक्ट विल बी लेस। तो ये चीज आपने, आई विल गिव यू इन डिटेल इन कॉन्सेप्ट लेक्चर, बट ये पता ही होना चाहिए कि जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है, एफ इज व्हाट? फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। ये इम्पल्स वाले टॉपिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन को बेटा इंक्रीज कर लेते हैं तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट जो है कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई पुट द मैट और एनी अदर थिंग, ताकि उसको हर्ट ना हो, चोट नहीं लगे। क्यों? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन से जो है फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम होता है। ठीक ऐसे जैसे क्रिकेटर वाइल कैचिंग द बॉल अपने हैंड को पीछे लेता है टू इंक्रीज द टाइम ड्यूरेशन सो दैट फोर्स ऑफ इम्पैक्ट विल बी लेस। जैसे आप सोफे पे बैठते हैं तो सोफा नीचे को कंप्रेस होता है, तो वो क्या करता है? बेसिकली टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाता है ताकि आपको जो फोर्स है वो कम लगे, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, है ना। तो हम लिखेंगे, तो क्यों बिछाते हैं बेटा इसको? टू इंक्रीज टाइम ड्यूरेशन so that force of impact will be less, will be less. Okay, तो ये जो लॉजिक है वो आप सब जगह दे सकते हैं whenever you find the example like this. Now let's see another question here. Here in this question it is clearly written, hand cart is loaded with vegetable collide with identical but empty hand cart. तो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होने वाला है वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो ये देखो बेटा, मान लो ये एक हैंड कार्ट है और ये दूसरा हैंड कार्ट है, ये आपस में क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो एक में तो वेजिटेबल लोडेड है एक हैंड कार्ट में, और दूसरे में जो है एम्प्टी है। तो ऑलवेज रिमेंबर एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पे भी लगेगा। जितना एक्शन होगा उतना ही दूसरे पे क्या होगा? रिएक्शन होगा, राइट, कोलिजन के दौरान। तो एक्शन कहाँ होगा? पीछे के लिए या आगे के लिए, कहीं को भी बता दो। एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, action is nothing, that means force,
and reaction is nothing, that is also force but in opposite direction. अगर ये A है ये B है तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो ये होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A इक्वल होगा, बट डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अलग अलग। क्यों बेटा? ड्यू टू NLM 3, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द लोडेड कार्ट exert a force of larger magnitude, ये गलत है। empty exert a force of larger magnitude, wrong, ये भी wrong। and fourth option is correct, loaded cart empty cart both exert equal magnitude of force during collision। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन वाली मैंने पिक्चर बना दी है। तो ड्यूरिंग कोलिजन वो सेपरेट होने वाले होते हैं, ठीक है। 3 केसेस होते हैं कोलिजन में, लर्न इन हायर क्लासेस, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एंड ड्यूरिंग कोलिजन। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। वैसे सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाते हैं रिगार्डिंग द फोर्स। तो देखते हैं, एनसीईआरटी बुक में बेटा इस वैल्यू को आपने ध्यान रखना है, वहाँ पे ये चेंज्ड है तो उसको चेंज करना है। तो आई फाउंड समथिंग रॉन्ग इन द बुक, तो उसमें ये वाली जो वैल्यू है वो कुछ और दे रखी है। आई चेक व्हाट इज दिस। ओके, आई शो यू हियर इन द बुक एनसीईआरटी 9, just wait for a minute। अच्छा ये तो है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट विद मी राइट नाउ। ओके, इट इज़ ओनली मोशन चैप्टर, बट आई नीड चैप्टर ऑफ द फोर्स। आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास अभी बुक अवेलेबल है, मैंने चेक किया था ये। तो ये ध्यान रखना, ये 10 न्यूटन है यहाँ पे ना। 1 पे यानी कि कितनी वैल्यू है, ग्राफ को केयरफुली देखना है, 10 न्यूटन। और 2 पे कितनी वैल्यू है बेटा, 5 न्यूटन। और 2.5 पे ये वैल्यू जो है 2.5 है, थोड़ी ऊपर को है इसमें, ये 2.5 है। कहाँ पे, 5 पे, यानी कि एक डॉट यहाँ है, एक डॉट यहाँ है। थोड़ा अच्छे से समझो इसको, ग्राफ पेपर के ऊपर एक यहाँ है, ठीक है। तो वैसे तो मैं डायरेक्टली भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसने पूछा है फाइंड आउट द फोर्स एंड मास ग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मैथमेटिक्स या कैलकुलस लगा के या ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगा सॉल्व किया जा सकता है, बट 9th स्टैंडर्ड के लिए हम थोड़ा सा इसको सिंपल बनाते हैं। तो मैं एक टेबल प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेबल में हम सबसे पहले डेटा असाइन करते हैं कि क्या डेटा हमारे पास है और हमको चाहिए क्या बेसिकली, है ना। तो मैं इस तरह से देखता हूँ इसको, ऐसे ग्राफ हम बना सकते हैं फॉर द टेस्टिंग ओनली, फॉर द टेस्टिंग ओनली। तो इधर बेटा देखो क्या दे रखा है इसने, एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम नीचे को मास दे रखा है, तो इधर एक्सेलरेशन है, इधर मास ले लेते हैं, इधर एक्सेलरेशन लेते हैं। निकालना हमको फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द मास, 1 kg मास में जो है 10 एक्सेलरेशन है, तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर। दूसरे में देखो 2 kg मास में एक्सेलरेशन कितनी है, 5। तो यहाँ पे भी जो फोर्स आएगी आपके पास दैट इज 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन अगेन। फिर एक थर्ड पॉइंट ले लो, 5 kg मास है और इसमें 2.5 जो है एक्सेलरेशन है, तो 2.5 इंटू 5, तो दैट विल बी अगेन 10 न्यूटन। तो एक पैटर्न हमको बेटा यहाँ पे रफली समझ आ रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स सेम ही आ रही है हर मास पे, तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द ग्राफ। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना देते हैं फोर्स और मास का, ठीक है। तो लेट दिस इज फोर्स, फोर्स है और इधर को मास ले लो, है ना। तो बात वही है कि 1 kg 2 kg 5 kg फोर्स हर जगह सेम आ रहा है, तो दैट्स वाई व्हाट शुड द नेचर ऑफ द ग्राफ हियर, इट शुड बी पैरेलल टू टाइम, सॉरी पैरेलल टू मास एक्सिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर्स एंड मास।
क्योंकि फोर्स कैसा है बेटा, सेम। कितना है हर जगह, 10, वेदर इट इज़ 1 kg, 2 kg और 5 kg। तो मास हमेशा kg में लेना है यहाँ, एंड फोर्स लेना है न्यूटन में। तो you'll get these different points here where force is coming same at all points. So that's why nature of graph is what? Straight line and parallel to mass axis. Okay, so I'm concluding this lecture with 10 question. In upcoming new lecture or new video, you'll get the solutions of rest of exercise as well as pause and ponder the question which is middle of the book. Till that, keep on subscribing and seeing this video to enhance your knowledge towards the physics. Thank you everybody. Thanks a lot. Thank you very much.